ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن احب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صادق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں اپنا الگ مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ کوئی آپ کو ضرورت ہے تو وہ جواب دیتے، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ ایک طویل عرصے گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگی عبادت سے کہاں؟ لبیک یا سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا، اللہ ایک ہے، دلوں کے اشارے سے واقف ہے، اور جو قبر میں ہیں ان کو اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے کہا اس عورت سے یہ کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس یہ سن کر اس عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم کے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنا آنکھ بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھک لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جات ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندگی کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے؟ میری سالوں کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، ہر جانی کی بخشش نہیں ہے اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا ناراض ہو کہ پھر وہ کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ نے نفس سے اس کو اور اس عورت کے مخاطب خوب بحث بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن احب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل تو رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، مجھ سے کیا ہوا؟ تو جلتی کیوں نہیں؟ تو یہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گئی، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کچھ کر گئی۔
उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढक दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस मलऊन ने चीख कर कहा, ऐ लोगों, फला बेटी से फला आबिद शख्स ने जिना किया है और जिना करते के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चुनांचे जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाए के साथ सवार होकर और इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो साहिब इकबाल किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा तो आबिद ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा, क्या फला की बेटी फला कहाँ है? आबिद ने कहा, यहीं पर हैं, मेरे पास मौजूद हैं। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, उनको कहो कि वो मेरे पास आएं। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुके हैं। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, क्योंकि वो जिना के लिए रजामंद नहीं हुए तो तुमने उनको कत्ल कर दिया, जिसके अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर उस इबादत खाने को गिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीर डाली और उसके घसीट ले आया और औरत की लाश को वहां से हटा दिया गया और इस इबादत खाने को गिरा दिया गया। उस वक्त के लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरा से चीर दिया जाता था। आबिद का हाथ जो रात के वक्त में जल गया था, उसे आबिद ने हाथ की आस्तीन में छुपाया हुआ था और अब आबिद वाकया की हकीकत किसी को नहीं बता रहा था। चुनांचे और को आबिद के पास पर रखा गया और जल्लादों को हुक्म दिया गया कि आरा चला दो। चुनांचे हुक्म मिलते ही जल्लादों ने हुक्म की तामील की और आरा चला दिया। जब आरा आबिद के दिमाग तक पहुंचा आ निकला गई, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि इसको कहो कुछ ना बोले, मैं इसका सब्र देखना चाहता हूँ। इसके सदक़े में मेरी अर्श बरदार है, मेरे आसमान के यकीन को रुला दिया है। मुझे मेरे लक़बे और जलाल की कसम, अगर इस आबिद ने दूसरी दफ़ा आवाज़ निकाली तो मैं आसमानों को ज़मीन पर गिरा दूंगा। चुनांचे उस साहिब ने दूसरी मर्तबा आह ना निकाली और ना कोई बात बताई, हाथा कि उसकी हालत में इसका इंतकाल हो गया। जब वो फौत हो गया तो अल्लाह ताला ने इस मुर्दा औरत में रूह डाली और आबिद का अमल देखकर दुनिया से कूच कर गई थी। तो औरत ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह की कसम, ये मजलूम होकर फौत हुआ है, इसके जिना नहीं किया था और मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इसके बाद उस औरत ने गुजरात रात का सारा वाकया लोगों के सामने नकल किया। तो ये सुनकर जब लोगों ने उसका हाथ निकाला तो जैसा लड़की ने बताया था वैसा ही जला हुआ था। ये देखकर लोग कहने लगे कि अगर हमने इल्म होता कि असल हकीकत क्या है तो हम कभी भी इसके जिस्म को ना काटते। आबिद को दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और लड़की भी जैसी पहले मुर्दा थी वैसे ही हो गई। फिर उन दोनों को दफन के लिए कब्र खोदी गई तो उसमें कस्तूरी, अंबर और कपूर की खुशबू महक रही थी। और फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए उनकी मौतों को लिए गए। उसके बाद लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पर चमेली को उगाया और लोगों ने उनकी कब्र पर तख्त देकर इस पर
लिखा हुआ था कि शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अपने वली की तरफ से मैंने अपने अर्श के नीचे एक मेंबर लगाया और अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने जन्नत फिरदौस में 500 औरतों से इस वली का निकाह किया और मैं अपने फर्मा बरदार और मुकर्रर को ऐसे ही इनाम और इकरार से नवाजता रहूं। सुभान अल्लाह। इस वाक़े को पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कितना इनाम फरमाया कि जो इसकी इत्तिबा करता है उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह के इस वली ने दुनिया में अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्स की इताब नहीं की, जिसकी वजह से वो रब का मुकर्रर बन गया। अल्लाह ताला इस तरह तमाम मुसलमानों को नफ्स की गुलामी से बचाए। इस वाक़ये से सुनकर सबक मिलता है कि नफ्स की इत्तिबा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफ्स इंसान को हमेशा सतर्क और गलत का दिलहा बना देता है और फिर नफ्स के बायस इंसान जहन्नम की तरफ चला जाता है। दोस्तों, आप इस वाक़ये से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिना पहली उम्मा तो मैं कितना कभी और बुरा फल समझा जाता था और इसकी सज़ा उन लोगों ने कितनी सख्त रखी थी, और इस आबिद ने अपने जिस्म को इतनी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला किया, लेकिन जहन्नम के खौफ की वजह से जिना की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि जहन्नम की आग इतनी सख्त है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सबसे बड़ी आग है। और हदीस शरीफ में है कि दुनिया की आग दोज़ख की आग का 1/4 हिस्सा है। ऐ मुसलमानों, आलमे जिना की शिद्दत और हलाक खेजिए का अंदाज़ा कुरान व हदीस और तारीख़ इस्लाम के वक्त में आए हुए इन खुले और वजह एक क़यामत को बढ़कर है जाता है कि जिसने हर मुसलमान को ये फ़िक्र करनी चाहिए कि वो इस गुनाह अजीम का मुराद किब्र होने से बचे। अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत के लिए वाज़ेह रास्ते बना कर दिए हैं जिन पर चलकर इंसान खुद को अजाब से महफूज रख सकता है। बस अक्लमंद वही है जो गुनाहों की इस खार वादी से अपना दामन बचाकर गुजर जाए। जज़ाकल्लाह खैर।